नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की तमाम हलचल पर। बटाला के गोविंद नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की हत्या कर घर में ही दफना दिया शव। पुलिस ने किया बरामद। जालंधर के लोहिया खास के सिविल अस्पताल में दो पक्षों में जबरदस्त गोलियां चली हैं, दो गंभीर रूप से घायल। फिरोजपुर में गत दिवस गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों और पुलिस में हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक आरोपी हुआ घायल। और अब हलचल विस्तार से। बटाला के भुल्लर रोड स्थित गोविंद नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमिका के माता पिता ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी और उसका शव घर के अंदर ही दफना दिया। मामला तब सामने आया जब मृतक युवक के माता पिता लापता बेटे को खोजने के लिए उसकी प्रेमिका के घर गए और घर को बंद पाया, लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब घर के अंदर से दुर्गंध आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक की उसकी प्रेमिका के परिजनों ने हत्या कर शव को घर के अंदर ही दफना दिया। मृतक युवक की पहचान 17 वर्षीय साहिल मट्टू के नाम हुई है, निवासी न्यू आबादी पुंडर बटाला के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी परमवीर सिंह, सिविल लाइन थाने के एसएचओ निर्मल सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मृतकों के दफनाए गए शव को खोदने की कार्यवाही की गई है। मृतक साहिल के दादा यूनुस मसीह और मां बेटी ने बताया कि उनका बेटा रविवार से घर से ही लापता था और उसी दिन से उसकी तलाश कर रहे थे। पारिवारिक सदस्यों ने पुलिस से न्याय की मांग की है। मेरा नाम बेबी जो ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕੀ ਆ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਲੋ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵਾ। ਬੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਹ ਫਾਟਕ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਸੀ ਕੋ ਗਈ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਆਇਓ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ। ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਧਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਜੰਮੂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਲੈਣੀ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ? ਨਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਮਾਨਸੀ ਕੋ ਚੱਲਾ ਵਾ, ਚਾਰੀ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਨਸੀ ਤੇ ਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਵੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜਨਾਨੀ। ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੋ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਬਸ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਬਸ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਕਿਆ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਪਿਆ। ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ। ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਆਈਫੋਨ ਹੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਘਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ? 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਿਊ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਿਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ, 2 ਅਨਨੋਨ ਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जिसले अरेस्ट होगा तो हम जरूर दस। जालंधर के लोहिया खास के सिविल अस्पताल में गोलियां चलने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार लोहिया के सिविल अस्पताल में नशीली गोलियां लेने आए युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके बाद एक पक्ष द्वारा गोलियां चलाई गई। इस घटना में 2 युवक घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार देने के लिए उन्हें जालंधर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची DSP शाहकोट ओंकार सिंह बराड़ और लोहिया थाना प्रमुख लाभ सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल में नशा छुड़ाव केंद्र में गोलियां लेने आए 2 व्यक्ति कुलवंत सिंह तेजी और गुरतेज सिंह के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि गुरतेज सिंह ने अपने 12 बोर हथियार से कुलवंत सिंह तेजी पर गोली चला दी। तेजी की बाईं बाजू पर गोली लगी है। इस दौरान तेजी और मौके पर मौजूद अन्य व्यक्तियों ने गुरतेज सिंह का हथियार छीन लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। इस घटना में वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल दोनों पक्षों के वारिसों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਬਾਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਫਲ ਲੈ ਆਂਦੀ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਰਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੋਲਿਆ ਜੀ, ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਫਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਜੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਸਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਮਾੜਾ ਜਗੀਰ। ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇਜੀ ਆ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਕੀ ਨਾ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਪਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ रिपोर्ट, अजय पहुंचे ही होने। फिरोजपुर पुलिस ने गोली मारकर युवक की हत्या के 2 आरोपियों को काबू किया है। अन्य की तलाश लगातार जारी है। बीते वीरवार को शहर के मक्खू गेट पर शहर की बलूचा वाली गली निवासी आशु मोंगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एएसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने के सभी आरोपी आशीष चोपड़ा गैंग के गुर्गे हैं। आशु मोंगा, युवराज उर्फू यूवी व अमरीक सिंह के बीच कोई विवाद था। वारदात वाले दिन आशु मोंगा अपने साथियों संग हथियार से लैस कार में सवार होकर मक्खू गेट स्थित टैटू की दुकान पर गया था। वहां मौजूद युवराज उर्फ यूवी को उसने ललकारा। उसी समय यूवी ने आशु पर गोली दाग दी जो उसके माथे पर लगी। वहीं पर उसकी मौत हो गई। आशु मोंगा की पत्नी पवनदीप कौर के बयानों पर आरोपी आशीष चोपड़ा, अमरीक सिंह, गुरदीप सिंह, अंग्रेज सिंह, जोगिंदर सिंह निवासी हीरानगर, शिवम सहगल निवासी नानकपुरा, दुलची के युवराज सिंह यूवी सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से आरोपी अमरीक सिंह और जोगिंदर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲੋਂ ਗੌਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਸੀਮ ਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਢਲ ਖੁਰਦ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਨੂ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਲੈਸ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ 1 ਵੱਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵੀ 1 ਵੱਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस सफाया करूंगी। जालंधर में पोश एरिया शहीद उधम सिंह नगर में मंदिर कमेटी की ओर से तनख्वाह न दिए जाने से परेशान पुजारी ने खुद को आग लगा ली। घटना में जख्मी पुजारी की पहचान शिव दयाल तिवारी के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंडित के परिवार ने आरोप लगाया है कि मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा उसकी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, जिससे परेशान होकर पंडित ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामले की जांच के लिए थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। इस मामले में पंडित ने कहा कि वो गांव गया था, इस बारे में कमेटी को बताकर गया था, जब आया तो उसे दोबारा ज्वाइन नहीं करने दिया, इसलिए उसने ये कदम उठाया। किसी कमेटी की वजह से परेशान हो गए थे। कौन सा मंदिर है? ये राधा कृष्ण मंदिर है। भूता सिंह नगर।
क्या कहाँ से शुरुआत होती है? जब ये पंडित जी छुट्टी लेकर के गांव जाते हैं तब से शुरुआत हुई? हाँ। तो वहाँ से पूरा बता। जब पंडित जी को घर जाना था तो ये अर्जी देख के गए थे। है तो जो दूसरा प्रधान मालिक है, उसका नाम हमें नहीं पता, पर दूसरा है कोई प्रधान, तो वो पवन है शायद, पवन प्रधान जी हैं। तो वो बोल रहे थे कि नहीं ठीक है, हो गया, हम अर्जी स्वीकार कर लिए हैं, अब कोई बात नहीं। फिर जब उधर से गांव से आए तो बोल रहे थे कि आप हाथ में अर्जी क्यों नहीं दे के गए? आपको पहले बताना चाहिए ना कि आप पंडित जी आप हाथ में अर्जी दे के जाओ ना। बात बताना, जो पवन प्रधान जो आप बोल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेशन दी थी? हाँ, उन्हीं के तो ऊपर। अभी कमेटी चेंज हो गई हाँ, उनके जाने के बाद? नहीं वही है कमेटी। वही है। तो अभी क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या हुआ था अभी घटना? अभी यही बोल रहे हैं कि हम हाथ में अर्जी क्यों नहीं दे के गए। फिर जब उधर गांव से आए तो बोले कि हाथ में अर्जी दो, तो लिख के फिर दोबारा हाथ में अर्जी दिए, फिर भी नहीं मान रहे। अब बोलते हैं कि सब कमेटी वाले नाराज, तो कमेटी वाले नाराज है तो हम क्या करें फिर? कमेटी वाले नाराज यार, अपना खर्चा तो निकाल रहे पहले, लेकिन हम क्या करेंगे? हम दीवार थोड़ी ना खा लेंगे, हमें भी तो चाहिए ना, हमारा छोटा सा बच्चा है। तो ये दो दिन अटकाए जा रहा। आज 1 हफ्ता हो गया, 1 रुपए नहीं आया पैसों का। तो क्या करेंगे बताइए? किराया से रह रहे हैं, वो नहीं देंगे किराए वाला तो वो भी भगा देगा, तो क्या करेंगे बताइए? तो ये बस इसी परेशानी की वजह से आज वो आग लगा के बैठ गए हैं। तो अभी मांग क्या कर रहे हो आप? हम मांग ये कर रहे हैं कि मंदिर में कोई तकलीफ ना हो उनको। यदि वो बोल रहे हैं, वो वाले कमेटी वाले बोल रहे हैं कि फंडा ना करो, पूजा ना करो, तो वो नहीं करेंगे, पर आपको 30,000 रुपए देना पड़ेगा और एक मकान रहने के लिए देना पड़ेगा, तब वो कुछ नहीं फंडा करेंगे। यदि आप कुछ नहीं दे रहे तो वो पूजा पाठ करेंगे, फंडा करेंगे। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर शांति से रहिए, आप भी रहिए और हमें भी रहने दो। पीछे अभी गाँव गया था छुट्टी लेके, वहाँ से आया हो गया 10-12 दिन में। ओके। तो गए यहाँ, इन्होंने हो गए जवाब दे दिया शायद कि भाई ऐसा कि अभी नहीं रखना। मंदिर कमेटी ने उनको नौकरी से जवाब दे दिया? हाँ, हालांकि वो एप्लीकेशन दे के गया था। ठीक है। उसके बाद ये पता नहीं क्या इनके बीच में का क्या कैसे है, पता नहीं। कोई आपस में मतभेद हुआ था इनका, कमेटी का और पंडित जी का? हो गया, ऐसे बातें तो चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ हो गया ऐसे पंडित जी के साथ में सब चीजें। तुझे जो आज अटेम्प्ट किया उसकी वजह क्या है? हाँ, वो वजह ये थी कि उनको रख नहीं रहे थे मंदिर में, तो उसके कारण फिर उन्होंने मेंटली हरासमेंट हो रही थी। मेंटली हरासमेंट? हाँ, कि भाई बच्चे पाले कैसे पालें, क्या करें भाई, इसके अकॉर्डिंग किराया हो रहा है जो भी है दुनिया भर के सब चीज़ें इसके अटेम्प्ट किया। इसके जिम्मेवार किसको मानते हो आप? अब जिम्मेवार तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब यह कि रीजन तो हो गया यही है कि भाई मंदिर में भाई नहीं रख रहे थे, इसी कारण से उन्होंने शादी ऐसा किया। जीरा के गांव गादिड़ावाला में बिजली चोरी की चेकिंग कर रही टीम के साथ एक परिवार द्वारा हाथापाई करते हुए कर्मचारी की पगड़ी उतारे जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कर्मचारी इंजीनियर संतोष सिंह ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार बिजली चोरी करने के लिए जब जांच की गई और रोका गया तो जेई गुरमेल सिंह, एएआई गुरप्रीत सिंह, अवतार सिंह और ड्राइवर लवप्रीत सिंह के साथ चेकिंग के लिए गांव गादिड़ावाला गए थे। वहां पर रंजीत सिंह, उसके भतीजे, उसकी पत्नी और 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ हाथापाई कर एक कर्मचारी की पगड़ी उतार दी। वहीं जब इस संबंध में डीएसपी जीरा गुरदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जीरा से हलचल के लिए देशविश की रिपोर्ट। जीरा तो मैं अपने महकमे की गड्डी के उपर अपने जेई सबान ते बाकी स्टाफ नाल लेके पिंड गालड़ीवाला विखे चैकिंग करन गए तां रणजीत सिंह पुत्र बग्गा सिंह जो कि बिजली चोरी कर रहा सी, मीटर बाईपास किया होया सी। जद उसनूं उस 4-in-1 बख्शी दी लगे लॉक की चाबी मंगी गई तो उसनूं नाह की गई। वो उसने अपने आप लगाया होया ताला और उसने 2 सरसां पाईयां होईयां। एक तो वो आउटगोइंग मीटर चों जा रही सी और दूसरी जिहड़ी आ साडे 4-in-1 बख्शे दे विचों मेन दे विचों इनकम चों सीधी लाई हुई सी। और ज्यादा साथी नूं बिल दिखाउण लई कहा जां लोड चैक करन लई साडे सरदार अवतार सिंह लाइनमैन ने उसनूं कहा तां रणजीत सिंह बहुत बखलाहट विच आ गया, ललकारा मारिया, इसदा मोबाइल भी खोह लिया गया और गाली गलोच करन लग पिया। जदों असीं रोकण की कोशिश कीती तां साडे
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਜੇਬ ਵਗੈਰਾ ਪਾੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਪਾਵਰ ਖੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੀਟਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਸਟੀਓ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗਾਜੀਵਾਲਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 57 ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੀਰਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ जो भी अगली है उन्हें गिरफ्तार करके। कहते हैं कि आदमी अपाहिज हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके हौसले अपाहिज हो जाएं तो वो कुछ नहीं कर सकता, और अपाहिज व्यक्ति के अगर हौसले बुलंद हों तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा एक मामला सामने आया है जंडियाला गुरु के गांव राजेवाल में, जहां गोपी सिंह नामक एक नौजवान विकलांग होने के बावजूद भी निज्जरपुरा टोल प्लाजा जंडियाला गुरु में अपने ट्राईसाइकिल पर पानी की बोतलें बेचकर कड़ी मेहनत कर रहा है और अपना गुजारा भी कर रहा है। वहीं जब इस संबंध में हमारी टीम ने गोपी सिंह से बात की तो उसने बताया कि वो बचपन से ही अपाहिज है। बचपन में पिता की मौत के बाद उसकी माता ने दूसरा विवाह करवा लिया, जिसके बाद उसे नाना नानी ने ही पाला, लेकिन अब नाना नानी की भी मौत हो गई है और वो जंडियाला गुरु में किराए पर रह रहा है। उसने बताया कि वो मांग कर खाने की बजाय मेहनत की रोटी खाना पसंद करता है। उसका सपना है कि चाहे एक कमरा ही हो, लेकिन वो अपना घर बनाए। इस दौरान उसने समाजसेवी संस्थाओं एवं NRI भाइयों से भी मदद की गुहार लगाई है, और अगर कोई उसे बैटरी वाला ट्राईसाइकिल ला दे तो उसका जंडियाला गुरु के निज्जरपुरा टोल प्लाजा पर आना जाना आसान हो जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। वाहगुरू जी की फतेह। मेरा नाम गोपी जो मैं 2-3 महीने हो चले जी सर जी। हाँ जी, पहला सर जी मैं थोड़ा जिहा फ्री रहा वा, मेरे को काम कार नहीं है। मैं फैक्ट्रियां बड़ियां खोलियां है, बड़ियां फैक्ट्रियां घूमियां है, तो काम नहीं किते भी मिलिया। मेरे को 300 रुपया है, मैं फिर 300 रुपये तो मैं काम चालू किया, 3 पेटियां पानी लिया के। हाँ जी, हाँ जी। किन्ने चिर तो मतलब कि तुसी मतलब सवेरे किन्ने बजे आउंदे? सवेरे मैं 10 बजे आउना जी। किन्ने बजे तक? 5 बजे तक, 5, 5:30, 6 बजे। हाँ जी, हुण ट्रैफिक घटी है, हुण जाम जूम नहीं लगता, कि जाम जूम बथेरा लगता सी। इदां ही हुण जे 200-300 बन गया, नहीं तो 3-4 दिन हो गए मैं खाली मुड़ के जान दिया वा। अपने कोलों मैं बर्फ लियाना वा, वो इदां मैं जे नहीं लगता फिर पानी तो फिर मैं डब्बे च पा के मैं घरे लै जाना वा, ते 2-3 बोतल च पानी रख लेना मैं अपने पीने लई। ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਪਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 1 ਮਰਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਸਰ ਜੀ ਘਰ ਬੂਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਕਰਾਂ, ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੂਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਣੇ 1 ਪੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆ ਕੇ, ठीक है भाई। जिन्नी तो जिन्नी हो सके मदद करना सारे जने, ये अपना सुपना पूरा हो सके। पार्षद जतिन गुलाटी ने अपने वार्ड के प्रति कितने समर्पित हैं उनके कार्यों से ही पता चलता है। कभी नया ट्यूबवेल लगा रहा है तो कभी नई स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं, कभी सीवरेज की समस्या को सामने खड़े होकर हल करवा रहे हैं। उसी को लगातार जारी रखते हुए पार्षद जतिन गुलाटी ने मेयर विनीत धीर के हाथों से रिबन कटवाकर स्वर्णकार मार्केट के अंतर्गत पड़ते भट्टावाली कोलियां गली और लाल बाजार के हनुमान चौक की सड़क को बनाने का शुभारंभ करवाया। इस मौके पर लाल बाजार के दुकानदार भी मौजूद थे। मेयर विनीत धीर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जालंधर को स्वच्छ तथा सुंदर शहर बनाने की है, जिसके लिए वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो वहीं पार्षद जतिन गुलाटी ने मेयर विनीत धीर का आभार जताया और इस अवसर पर प्रधान दीपक निश्चल, चेयरमैन शिव चौहान, वाइस चेयरमैन संजीव भोला, जनरल सेक्रेटरी निखिल निश्चल, वरुण चोपड़ा, सुमित वरुण, राजेश राजी, अनमोल महाजन, जनक चौहान, प्रदीप संजीव, जज श्याम निश्चल, शविंदर सिंह, सोनू हरजीत सिंह, केवल कृष्ण, संत चोपड़ा, बोबी धीर, जितेंद्र कोमल भी मौजूद रहे। जालंधर से के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर एसपी डालिया की अध्यक्षता में किया गया। संगोष्ठी में शहर के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बलराज गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी पूजन से हुई, जिसके पश्चात नीमा के सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव धवन ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। सभा की शुरुआत में संगठन के दिवंगत सदस्यों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर परविंदर बजाज को राष्ट्रीय नीमा के महासचिव बनाए जाने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। भावुक होते हुए डॉक्टर बजाज ने ये उपलब्धि सभी सदस्यों को समर्पित करते हुए कहा कि यह सम्मान आप सभी के प्रेम और सहयोग का परिणाम है। मुख्य वक्ता डॉक्टर बलराज गुप्ता ने स्ट्रोक यानी अधरंग के इलाज में आधुनिक चिकित्सा दवाओं और सर्जरी की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव धवन, अध्यक्ष डॉक्टर एएसपी डालिया सहित डॉक्टर अनिल नागरथ, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर पवन विशिष्ट, डॉक्टर उर्फान, डॉक्टर वरुण अग्रवाल, डॉक्टर अंकुर गौतम, डॉक्टर सुमित कल्याण, डॉक्टर विपुल कक्कड़, डॉक्टर एस गोहत्रा, डॉक्टर संजय बग्गा, डॉक्टर जितेंद्र प्रभाकर, डॉक्टर रचना हांडा, डॉक्टर रीमा मल्होत्रा, डॉक्टर विनीता गोस्वामी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी डालिया, प्रेजिडेंट नीमा जलंधर। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਏ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਨੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨੀਮਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰਰਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਮਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਡਾਲੀਆ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਨਾਗਰਥ, ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਲੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। श्री सनातन धर्म सभा गीता मंदिर मॉडल टाउन की ओर से 54th वार्षिक मां भगवती की जागरण बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि दिव्य शक्ति एवं पार्टी जलंधर वाले सोना डोगरा एंड पार्टी और महंत बब्बी रंगीला एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, मॉडल टाउन मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के प्रधान राजीव दुग्गल, सीमा मल्होत्रा और पार्षद बलराज ठाकुर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मॉडल टाउन मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रमेश लखनपाल, चेयरमैन लखबीर सिंह लाली, मंदिर कमेटी के प्रधान विजय खुल्लर, ML चौड़ा, प्रदीप कुमार, अजय लाली, बांके लालपुरी, रणबीर जगोता, रमेश गुप्ता, सुरेंद्र खुल्लर, वीरेंद्र खुल्लर, संधीर खुल्लर, सौरभ खुल्लर, नितिन चौड़ा, जितेंद्र गोंदी, कृष्ण चौहान, प्रवीण खुल्लर, सुशीला खुल्लर, अनित खुल्लर, नीलम खुल्लर, मोना जलोटा सहित
असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमो नमः। आशुमासे ज्येष्ठमासे शुक्ल पक्षे भाष्यान् शुक्लं ब्रह्मदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। जलं स्नानं ऋतुफलं भोंगीफलं इलालौषु ताम्बूलं सर्वतो श्री महालक्ष्मीपदेभ्यो नमो नमः। पाद्यम् अर्घं स्नानं ओं पाद्यम् अर्घं स्नानं समर्पयामि। अधुमांगलवस्त्रं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए बेच
माता चिंतपूर्णी मंदिर विकमपुरा माई हीरा गेट जलंधर में 91वें मूर्ति स्थापना दिवस एवं निर्जला एकादशी के पावन उपलक्ष्य पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीतमय भजनों के साथ दोपहर 4 बजे हुई, जो देर शाम तक भक्ति रस में डूबे श्रद्धालुओं को माता रानी की महिमा का स्मरण कराते रहे। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायिका कंचन मदान ने अपने भजन मंडली के साथ मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। मां चिंतपूर्णी की स्तुति से लेकर हर भजन में श्रद्धा और संगीतमय शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया और भक्तों के लिए विशेष प्रसाद एवं जल सेवा की व्यवस्था भी की गई। आयोजकों ने बताया कि ये आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धा एवं भक्ति से वातावरण में पूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक जगदीश कंवल एंड पार्टी जालंधर वालों ने मां भगवती के भजन को गाकर उपस्थिति मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। वही माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पुष्पंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दीनहीन की सदा सहाई, संकट हरनी बड़ी फलदाई, देवी तालाब
अपना शहर जलंधर अलौकिक जहाँ तेरा मंदिर शक्ति पीठ माँ शक्ति तेरा दुख संताप का घेरा चरण तो पहला मनोद श्री गणेश पाठ करन तो पहला मनोद श्री गणेश होंदे इसके पूरे कारज मिट जाते निकलेश उसके पूरे कारज मिट जाते निकलेश हो दुख दर्द कब से पुकारे मामा बैठे कब से पुकारे मामा तुझे तेरे लाल बुलाते हैं हे त्रिपुर मालिनी माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं बैठे कब से पुकारे माँ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं तुझे जाने क्या हो गया जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया हे दिव्य मालिनी माँ मैं तेरा 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 हो गया जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया तेरी पूजा करता रहूं रात दिन ना एक पल भी बीते मैया तेरे बिन तेरी पूजा करता रहूं रात दिन ना एक पल भी बीते मैया तेरे बिन मेरा हाल यूं आजकल हो गया मेरा हाल यूं आजकल हो गया हे दिव्य मालिनी माँ मैं तेरा हो गया हे दिव्य मालिनी माँ मैं तेरा हो गया जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया मोती ले लो हीरे ते मोती ले लो फुल्ला भी ले लो मुस्कान मैया जी ने खोली है दुकान मैया जी ने खोली है दुकान मन करे रो आत्मा सुनी दिन बुआ कर ढोलिया मुन दिन बुआ कर ढोलिया मुन दिन बुआ कर ढोलिया ओ मन करे रो आत्मा सुन दिन बुआ कर ढोलिया मुन दिन बुआ कर ढोलिया मुन दिन बुआ कर ढोलिया मन दा मैं भी गुणगार हां विषया ने मन मेरा मोड़िया विषया ने मन मेरा मोड़िया विषया ने मन मेरा मोड़िया माफ करी बख्शण हार मां माफ करी बख्शण हार मां देखी जग विच हुण ना मैं चर्चे शेरा वाली दे दिल दी दार मां मिलिया रे ओ सिर ते चंदियां लाल रंग दे मोते जय जयकारे सिर ते पटके लाल रंग दे मोते जय
गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चढ़ती कला ह्यूमन राइट्स की ओर से संत बाबा जसविंदर सिंह जी की रहनुमाई में बाशिरपुरा पानी की टंकी के नज़दीक ठंडे मीठे पानी की छबील और चने के प्रसाद का लंगर लगाया गया। इस सेवा कार्यक्रम में वार्ड नंबर 23 की पार्षद शैली खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने स्वयं प्रसाद वितरण कर संगत की सेवा की और गुरु साहिब के बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर नेशनल प्रेसिडेंट उपविंदर सिंह कंग और नेशनल प्रेसिडेंट लेडी विंग सुप्रभा शर्मा ने कहा कि गुरु जी के बलिदान का स्मरण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। हमें सेवा के माध्यम से उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर नेशनल जनरल सेक्रेटरी रंजू वर्मा, पंजाब वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र कौर, जिला चेयरपर्सन अनीता जोशी, सदस्य मधु गोगना, प्रीत बाला और अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज नाम तीरे दे सोमे बाणी कह बोए धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज तेरह दे पावन शहीदी गुरपुरब नूं समर्पित जो चढ़दी कला ह्यूमन राइट्स वालों समूह कमेटी वालों सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब की किरपा द्वारा जो बीबा नंजन कौर चैरिटेबल हस्पताल के सामने जो संगतां दे सहयोग नाल अज विशेष ठंडे मिठे जल की छपील बिस्कुट का प्रसाद लगाया जा रहा है जो साधु के चरणों में अरदास की गई है। सो इस समागम के विच श्रीमती शैली खन्ना जी, विवेक खन्ना, अभी खन्ना जी अते जो बीबी नरेंद्र जी को जी, सरदार उपविंदर सिंह जी प्रधान अते होर भी मैंबरान साहबान जो इस समय सारे तन मन धन नाल सेवावां करते हुए जो साधु के चरणों में ठंडे मिठे जल की छपील का लई अरदास की गई है। सो हुण ठंडे मिठे जल की छपील का प्रसाद शुरू किया जा रहा है। सो दास साधु के चरणों में अरदास बेनती करता है कि महाराज जिन्हां जिन्हां संतां ने तन मन धन करके सेवावां करियां सब दीयां सेवावां दाते प्रवान करन, सानूं खुशियां दे खेड़े ते अपने चरणों का प्यार बख्शित करते रहन। बोले सोने हाल सरताज धन धन गुरु अर्जन देव जी सिख कौम के 5वें गुरु ते शहीदी दिहाड़ी नूं समर्पित अज इत्थे मिठे ठंडे जल की छबील लगाई जाती है जिहदे विच चढ़दी कला ह्यूमन राइट एसोसीएशन की टीम ने हाज़री भरी है जिहदे विच विशेष तौर पर पहुँचे अज MC शैली खन्ना जी ठीक है ते चढ़दी कला ह्यूमन राइट एसोसीएशन तो साडे बहुत ही सत्कारयोग नैशनल प्रेसिडेंट महिला विंग मैडम सुप्रभा शर्मा जी ते उन्हां दे नाल नैशनल जनरल सैकटरी मैडम रंजू शर्मा जी ते नाल साडे जिहड़े पंजाब के सीनियर वाइस प्रधान नरेंद्रजीत कौर जी जिन्हां दी देख रेख च अज बहुत वधिया उपराला हो रहा है छबील का मिठे ठंडे जल की छबील ते नाल साडी जलंधर की टीम दे विचों चेयरपर्सन मैडम अनीता जोशी जी ते बाकी मैंबरां ने भी हाज़री भरी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमणी के दाते जिन्हां ने पूरे जगत नूं सुखा की मणी दिती है जिहड़े अज हर वर्ग के हर धर्म के लोग अज सुखमणी साहब नूं पढ़ के कईयां नूं तां डॉक्टरां कोल जाण दी लोड़ नहीं पैंदी इन्ना कुछ गुरु साहब ने जगत नूं दिता है। बस अज जो भी ये मिठे ठंडे जल की छबील है ये अज धन धन शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं समर्पित है। बस इन्ना कहते होया मैं हुण नैशनल प्रेसिडेंट महिला विंग मैडम सुप्रभा शर्मा जी नूं कहांगा दो शब्द कहन। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। चढ़दी कला ह्यूमन राइट्स एसोसीएशन के कौमी प्रधान सरदार भुपिंदर सिंह जी की अनुमति के नाल निर्णय लिया गया कि श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस से ठंडे जल और मीठे जल की छबील लगाई जाए, लेकिन 30 मई को क्योंकि बहुत लोगों ने लगाई होती है इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस तिथि को बदल करके 7 जून रख ली जाए। इसलिए आज के दिन में हम गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस के समर्पण में ये ठंडे जल की छबील लगाई है।
और इसका सारा श्रेय हमारे कौमी प्रधान सरदार भूपेंद्र सिंह जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो संस्था बनाई है, इन्होंने ही हमें इस संस्था के साथ जुड़ने का मौका दिया है और ये समय समय पर सामाजिक सेवा के कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। सो इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा और इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी मेंबर्स को इतनी शक्ति दे कि हम समाज की अच्छी भलाई करने में काम आ सकें और समाज की जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनको भी दूर करने में आवाज़ उठा सकें। यही मेरी प्रार्थना है। यही माता चिंतपूर्णी मंदिर विक्रमपुरा माई हीरा गेट जालंधर में 91वें मूर्ति स्थापना दिवस एवं निर्जला एकादशी के पावन उपलक्ष्य पर माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदीप पुजारी एंड पार्टी ने गणेश वंदना से चौकी का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रसिद्ध भजन गायक वरुण मदान एंड पार्टी ने महामाई की महिमा का गुणगान कर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से मां को चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अजय लाली चड्ढा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्ढा सहित मंदिर कमेटी के समूह सदस्यगण और असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जलंधर से कैमरामैन विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
परम आदरणीय परम पूजनीय श्री शीतलवीर जी सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी कला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं। दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर अखबार के मुख्य संपादक हैं। शीतल इंडस्ट्रीज के एमडी हैं, खास तौर पे पहुंचे हैं। उनका मंदिर कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है और हमारी ओर से सादर प्रणाम है। तो जय माता दी, जय माता दी। फिर बोले जय माता दी, जय माता दी। मिलके बोले जय माता दी, जय माता दी। चंचल जो कुछ कहना सब अपनी नहीं कुछ जाना, सब कहां सुना, अपनी नहीं कुछ जाना, सभी भक्तों को जाते जाते वरुण प्रधान की ओर से जय माता दी। माता रानी जी आप सबका कल्याण करें। जय माता दी। और जागरण की प्रथा को निभाने के लिए परम आदरणीय परम पूजनीय तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव अरण्यासिद्धयन्तो वा वेदना परिउपासने तेषां विद्यावियोक्तारं योगक्षेमं वाम्यं विशुद्रिय श्री भुवनेश्वरः देवादिसुन्दरादित्यं रामेशायनाथनः विशेषं माधवं प्रत्यं दण्डपाणिं च भैरवं प्रत्येकासिं स्वाङ्गं भवानी वैकर्णिकां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामेश्वराभ्यां नमः वाणीरत्नगर्भाभ्यां नमः सचिपुरन्दराभ्यां। कोट किशन चंद स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में संगीतमयी श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन की शुरुआत विधिवत रूप से हुई। इस धार्मिक आयोजन का संयोजक ज्योति परिवार की ओर मंदिर द्वारा भक्त वृंद द्वारा किया गया। वृंदावन से पधारे व्यासवंशी वदन महाराज ने पद्म पुराण के आधार पर भागवत महात्म्य का वर्णन किया। इस पावन अवसर पर मुख्य यजमान अंजू ज्योति, राजू ज्योति, मंजू ज्योति, डॉक्टर अनिल ज्योति, भारत भूषण, डॉक्टर राजेश ज्योति,
राजेश शर्मा, एडवोकेट राकेश बिहारी, ईश चोपड़ा, विपिन उप्पल, हितेश कपूर, राजेश नोना, राघव ज्योति, कर्ण कोड़ा, लक्की कपिला, अश्विनी हांडा, नरेंद्र पुरी, गोपाल कृष्ण सोनी, बलवीर ज्योति, विपिन ज्योति, आशीष शर्मा गोल्डी, देवेंद्र कालिया सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। यदि वृंदावन में कोई अपने ज्ञान की पिटारी लेके जाओगे, वहां ज्ञान काम नहीं आने वाला। उद्धव गया था, ज्ञान बजाए डुमडुमी और भक्ति बजाए ढोल, हार गए उद्धव। कहते हैं वृंदावन में भक्ति नहीं। अब भक्ति महाराज ने कह रही थी ये कलयुग के प्रभाव से, तो परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को रहने क्यों दिया? मार देगा उसको? नहीं नहीं, इस कलयुग की गुण है, बहुत दिन गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्मत कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग है महाराज। लेकिन कलयुग में ऐसा एक साधन है ना, जब तब यज्ञ कुछ नहीं करना है, एक मात्र यदि किसी ने कह दिया हरि बोल, राधे राधे, भगवान से पुकार सुन लेते। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लंबापिंड चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त साप्ताहिक सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रूपाली अरोड़ा एवं सौरभ अरोड़ा से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पचोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गईं। सिद्ध मां बगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ कर उपस्थित प्रभु भक्तों को अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर बधाई दी और भक्तों को राम कथा के प्रवचनों से निहाल किया। इस अवसर पर इंदु अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विक्की अग्रवाल, अमरिंदर कुमार शर्मा, अमृतपाल प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, जानू थापर, दिनेश चौधरी, नरेश कोमल, वेद प्रकाश, मुनीश मेहरा, जगदीश डोगरा, ऋषभ कालिया, रिंकू सैनी, कमलजीत बलजिंदर सिंह, बाबा खन्ना, धर्मपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। धर्म और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने वाले संजीव मिट्टू के भाई अशोक कुमार का आकस्मिक निधन हो गया है, जिनका अंतिम संस्कार जालंधर के हर नामद हसपुरा शमशान घाट में पूर्ण रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। स्वर्गीय अशोक कुमार को मुखाग्नि उनके बेटे विधिवत ढंग से दी। इस मौके पर जिमी कालिया, राकेश, मुकेश सेठी, समीर अभी, मोहित, राजन गुप्ता, बिल्ला जुगल, किशोर भक्त, मनोहर लाल, विनोद शर्मा, जतिंदर, मेहंदी रता, प्रीत, हैप्पी, टोनी, सन्नी, यूक्रेनी, राहुल, गोगना, रमन बेरी, हरी, हरजिंदर, महेंद्री रता, मनु नागलापुरा, मनु राजा, जैन, समीर मरवाहा, नरेश, अनमोल ग्रोवर, जितेंद्र पाल सिंह, बंटी नीलकंठ, अजय नाहर, काली गुलाटी, सुनील कत्याल, अश्विनी नरूला सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अशोक कुमार को नामांकन से अंतिम विदाई दी। अजय इंडस्ट्री के मालिक अजय गोस्वामी के भाई अजीत गोस्वामी का आकस्मिक निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार आज मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया। अजीत गोस्वामी को मुखाग्नि उनके पुत्र अतुल गोस्वामी ने दी है। इस अवसर पर शोकाकुल परिजनों ने पुत्र
अमित गोस्वामी, अतुल गोस्वामी, ओपी गोस्वामी, अजय गोस्वामी सहित शहर के व्यापारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और स्वर्गीय अजीत गोस्वामी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर। बटाला के गोविंद नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की हत्या कर घर में ही दफना दिया शव, पुलिस ने किया बरामद। जालंधर के लोहिया खास के सिविल अस्पताल में दो पक्षों में जबरदस्त गोलियां चली हैं, दो गंभीर रूप से घायल। फिरोजपुर में गत दिवस गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों और पुलिस में हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक आरोपी हुआ घायल। इन्हीं के साथ अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।